Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well, fit and healthy and enjoying your teaching from home. So student, today date is 27/8/2020, chapter number 12, locating places. So now student, let's discuss what we have done in our previous video. In our previous video student, we have completed book exercise, that is question number A, tick the correct answer. We have completed this. After that, question number B, true or false. This we have completed. I have discussed all the true and false question with you. Now after that, in our previous video we are doing question number C, that is match the rows. Okay, so what is the right match of neighborhood? Sketch, map and plan we have already discussed. Now one is left in the match of the column. What is that? That is direction. So in the picture, which is the right match of this? See, there is a picture in which the child is standing. The child is standing and her face is toward the sun, and it means the direction in which she is looking, that is the what direction? East direction. And what is the direction behind her? That is the west direction. Now you will see the child stretch her two hands in this manner. So this is a left hand. Left hand, the position of the direction towards the left hand, that is north, and the position of the right hand, that is what? South. So this picture in which the child is standing and facing towards the sun, that is their right match of fifth one, that is direction. I am just writing the direction. The child is seeing toward the sun side, so this is east. And behind, for example, here is the child. For example, this dot represent child. So what is the direction behind the child? That is west. And then the child stretches her hand. So left hand side is the north. Okay, and left hand side is a left hand side is a left hand side is the north, and right hand side is the south. Okay, for example, this dot is a child. She is seeing toward the sun side. This is the sun. So this direction is east. Behind it, it is the west. And this, she stretched her arm in this manner. So this is left hand is towards the north. Left क्या होगा? Left is the north, and right is toward the south. So note down. So after completing this child, now all of you take out your classwork copy. Now student, take out your classwork copy. Note down the name of the chapter, chapter 12, locating places, and today date is 27/8/2020. Write this thing on the top of the copy. And now student, let's start with the question answer of the chapter number 12. Okay, so open, all of you open page number 67, and we are doing question number D. Give short answer to the following question. Give short answers. Give short answers to the following questions. Question number 1. Note down the question. Name the 4 main direction. Okay. Name
Name the four main directions. So student, note down the answer. The four main question is, name the four main direction. The four main direction are, okay. What are the name of the four main direction? Even I explained you on a map also. When you see the top of the map, which direction you will see? Yes, very good. North. On the top, north, and the bottom you will see which? South. And your left hand side, that is the west, and your right hand side, that is the east direction. This is the direction shown on the map. So how many direction we have? Four main direction. This question we have already discussed in MCQ question also. How many directions we have? So student, we have four main directions. We have four main directions. So the four main directions are east, west, north, and south. So student, these are the name of the directions. ये directions के नाम है, ठीक है. So you write the first word capital, ठीक है. East, west, north, and south. So first word of all the direction should be capital, ठीक है, because this is the name. So note down this answer. Then student, we will complete it. If you want to take a screenshot, you can take it. That is the reason I am waiting for 1-2 seconds. Now, after completing this, let's start with the question number 2. Question number 2. Name any 4 landmarks. Question number 2. Name any 4 landmarks Name any 4 landmarks you see So student, you have to tell the name of the 4 landmarks. Landmarks मैंने बताया जहां से हम लोग कभी रास्ते में जाते हैं तो बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सब पड़ती हैं जिन्हें हम लोग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स कहते हैं. अपनी मेमोरी में भी मेमोराइज करके रखते हैं कि फिर हम कभी जाते हैं या तो हम ये दोस्ते हैं अच्छा हम यहाँ से गए थे तो वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था. इट हेल्प अस टू रिच द राइट प्लेस. ठीक है, ये लैंडमार्क हमारी हेल्प करते हैं राइट प्लेस पे पहुंचने में. इज इट क्लियर? नाउ सी नेम एनी 4 लैंडमार्क्स
यू सी ऑन आवर वे टू स्कूल, ठीक है, ऑन ईयर होगा, ठीक है, यू सी ऑन योर वे टू स्कूल। आप घर से स्कूल आते हो ना बेटा, डेली आप अपने घर से स्कूल आते हो, तो बस जितना भी डिस्टेंस है आपका और आपके स्कूल का, सो व्हाट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क यू सी व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल। जब आप अपने घर से स्कूल आते हो तो आपको क्या, कौन से फोर, कोई एनी फोर लैंडमार्क्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है, सो नोट डाउन। अब देखो आंसर, द लैंडमार्क्स वी सी ऑन आवर वे टू स्कूल आर। अब हम लिखेंगे वो कौन फोर लैंडमार्क्स हैं जब हम अपने घर से स्कूल के लिए आते हैं तो हमें दिखते हैं, ठीक है, सो दीज आर बैंक, बैंक, पार्क, पंप हाउस, टेम्पल, हॉस्पिटल, आर्मी क्वार्टर्स, एक्स्ट्रा। देखो क्वेश्चन में कोई फोर लैंडमार्क्स बोला था लेकिन मैंने एक दो ज्यादा लिखवा दिए हैं। आप फोर भी लिखोगे देन आल्सो यू गेट द फुल मार्क। ज्यादा इसलिए लिखवा दिए फ्रॉम एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, लर्न कर लो, इनमें से कोई फोर लिख देना, ठीक है। ये मैंने इसलिए कैंटोनमेंट का लिखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल में 39 जीटीसी के आते हैं, तो जो आंसर बोर्ड पे मिलेगा देखना मैक्सिमम बच्चों का यही कॉमन लैंडमार्क होगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द स्कूल इज फ्रॉम कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है। जैसे देखो आप लोग अपने स्कूल में आते हो तो बैंक है, स्टेट बैंक है ना इंडिया, एसबीआई है, पार्क भी है कैंपस के अंदर, पंप हाउस है, इज इट क्लियर, टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल इज देयर, हॉस्पिटल इज आल्सो देयर, एक एमआई रूम यहाँ है जो दुर्गा टेम्पल के बगल में है जस्ट, आर्मी क्वार्टर्स है वहां, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो चौक है जो गोल वाला जिसे आप लोग घोड़ा चौक बोलते हो, तो वो मैंने नहीं लिखा है, कोई फोर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर, तो यही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं। देखो कैसे तुम लोग बहुत पूछते हो सर लैंडमार्क क्या होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारे घर आना है, ठीक है, मैं कैंटोनमेंट में आ गया, मैं कैंटोनमेंट में आ गया बेटा, ठीक है, मुझे आपके घर आना है, तो आप मुझे बताओगे सर, जो जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें से मैंने ये ले लिया, पंप हाउस ले लिया, सर जो आर्मी का जो पंप हाउस है, पंप हाउस से लेफ्ट टर्न लोगे वहीं पे मेरा घर है, तो अब मैं कैंटोनमेंट में एंटर करूंगा तो आई विल आस्क समवन, क्योंकि भाई ये पंप हाउस है तो आर्मी का पंप हाउस है, सबके घर के लिए वाटर यहीं से जाता होगा, तो इसका मतलब ये फेमस प्लेस है। मैं किसी से भी पूछूंगा ये बताइए मुझे पंप हाउस कहाँ है, वेयर इज द पंप हाउस इन आर्मी स्कूल, अरे सॉरी आर्मी स्कूल नहीं, आर्मी कैंपस, तो एनी वन कैन गाइड मी कि आप यहां से जाओ वहां पे पंप हाउस है, तो ये मेरे लिए लैंडमार्क हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू एडमिशन हुआ, आप गेट नंबर 5 से अंदर आए, तो आपको कोई बोलेगा कि वहां टेम्पल है, विच इज द टेम्पल, दुर्गा टेम्पल है, ठीक है। वहां से आप स्ट्रेट सामने देखोगे तो आपको आर्मी स्कूल दिखता है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए दुर्गा टेम्पल हो गया इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। तो ये वो फेमस प्लेसेस होती हैं जिसको
बहुत से लोग अवेयर होते हैं, ठीक है। अब आर्मी कैंपस में पार्क कहाँ है, बैंक कहाँ है, एसबीआई का एक ही तो बैंक है, एसबीआई का एक ही बैंक है कैंटोनमेंट के अंदर। तो ये ऐसी फेमस प्लेसेस होती हैं जहां मैक्सिमम, जैसे बैंक है, बैंक में सब लोग जाते होंगे फॉर डिपॉजिटिंग द मनी और टेकिंग द मनी, सो एवरीवन नो अबाउट द बैंक, ठीक है। पार्क में ऐसा कोई नहीं होगा कि नियर में पार्क में ना जाता हो। पंप हाउस दे ऑल नो, ये जहां हम रहते हैं हमें पता होता है हमारे घर के अगल बगल कौन टेम्पल है, क्योंकि इतने फेस्टिवल्स होते हैं, वी गो एंड वर्शिप, ठीक है। हॉस्पिटल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्मी क्वार्टर्स कहाँ है, कैंटोनमेंट में एक्स्ट्रा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स विच हेल्प यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं जो आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन दिस आंसर। नाउ लेट राइट क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3। What is a compass? Note down the question. Question is, what is a question is what is a compass? How is it useful to us? So note down the question. What is a compass and how is it useful to us? Okay, student. Question is, what is a compass? How is it useful to us? So student, what is a compass? This question by I have written long answer question. Firstly we are doing short answer question. Short answer question कर रहे थे, गलती से मैंने long answer question का थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है. Okay, so sorry student, please rub it and write the question third of short answer question. Okay, ये क्वेश्चन किसका था, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का था। फिर आप कंफ्यूज, मैंने रब इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने बुक से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, आप उसी में कंपास का आंसर लिख दोगे। इज इट क्लियर? इट्स बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन 3 देखा और आई हैव रिटन द लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, सो रब इट, राइट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डायरेक्शन between south and what is the direction between south and west? इसके लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। कल ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन आया था, वहां आई एक्सप्लेन यू। देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, तो साउथ एंड वेस्ट के बीच की जितनी भी लोकेशन होगी तो क्या डायरेक्शन होगी, साउथ एंड वेस्ट दिया है तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही होगी। नॉर्थ ईस्ट दिया है तो डायरेक्शन जो दिया होता है वही डायरेक्शन होती है, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में जो भी एरिया आएगा वो साउथ वेस्ट ही हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो it is asked
व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट? लिखो आंसर। द डायरेक्शन the direction between the direction between south and west is west is क्या लिखेंगे? साउथ एंड वेस्ट इज साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। So this is question number 3 of short answer completed, and after that we will start long question answers of this chapter. And student, you will start a long question answer from the new page. Is it clear to all of you? You will start long question answer from the new page. Okay, after completing question number 1, 2, 3 of short answer, now you note down the next question, that is answer the following question. E question, why do we need direction? So you will start from the new page. Now we are doing question number 5. Now question number 1. What is the question? Why do we need directions? Question is, student, why do we need directions? So student, why do we need direction? Note down the answer. What is the reason we need a direction? So we need direction. First point, फाइंड आवर वे इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखो, अगर हमें डायरेक्शन का नहीं पता होगा, अगर हमारे पास मैप है और हम इससे क्या होता है, फाइंड आवर वे इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो हमें नॉर्थ में जाना है और हमें पता ही नहीं चला, हम उल्टी डायरेक्शन में चले गए, हम साउथ में चले गए। ठीक है, सो डायरेक्शन हेल्प यू टू फाइंड आवर वे इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमें ये नॉलेज होगी, कोई हमें बोलेगा आपको नॉर्थ में जाना है, जहां आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे हो कि मुझे इस हॉस्पिटल ही जाना है, तो वो हॉस्पिटल नॉर्थ में है। वाराणसी सिटी, मान लो अपनी सिटी को कंसीडर करते हो कि वाराणसी के नॉर्थ में है वो। अगर आपको डायरेक्शन
क्या है आपको वे, फाइंड आवर वे इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो इजिली हमको हॉस्पिटल मिल जाएगा, और गलती से नॉर्थ की जगह हम कोई और डायरेक्शन में चले गए तो हम उसको खोज पाएंगे जहां हमें जाना है, नहीं खोज पाएंगे। सो फाइंड आवर वे, इससे हमें अपने रास्ते का पता चलता है। फाइंड आवर वे इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में जो एड्रेस में दी होगी। इज इट क्लियर? सेकेंड, फाइंड एग्जैक्ट नोट डाउन, find exact position of a particular place or area on a देखो फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया ऑन ए मैप, क्योंकि मैप की डेफिनेशन में ये है कि मैप क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है। मैप क्या बताता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्लेस बताता है। तो आपको जहां जाना है उस एरिया का एग्जैक्ट पोजीशन, पर्टिकुलर प्लेस और कितना डिस्टेंस कवर करोगे, ये सब आपको मैप से पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? कितना आप डिस्टेंस आपको कवर करना है, ये आपको किससे पता चल जाएगा? मैप से पता चल जाएगा। नोट कर लो, नोट डाउन दिस आंसर, देन नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। Okay, now student, if we have completed the first question of this chapter, long question we have completed. Now before writing question number 2, question number, before writing question number 2 and 3, I want to give you the homework. ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। ठीक, so and you have to write this homework in classwork copy। ठीक है, you have to write this homework in your classwork copy। firstly, draw a, you note down this from the board, draw a sketch of your, you have to draw a sketch of your neighborhood। draw a sketch of your
neighborhood. And this is a diagram, so you will complete it in a classwork copy. Okay, then draw a sketch. So you are not coming to school these days. Okay, don't write sketch. Draw a sketch of your neighborhood हो गया. Another, it is given in the book. Draw a sketch of your classroom. Draw a sketch of your classroom. लास्ट ईयर आप सेकेंड क्लास में पढ़ रहे थे ना, डेली यू गो टू स्कूल, तो आप अपनी क्लास का एक स्केच ड्रॉ करोगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थैंक यू स्टूडेंट.